ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜਗਜੋਤ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀਪੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ। तो उस बिहाफ के उपर बच्चों आप स्टार्ट करांगे अज पंजाबी दे विच नवा टॉपिक है साडे लई हाइगन्स प्रिंसिपल। सब तो पहला पढ़ना बहुत जरूरी है कि वेव फ्रंट की है, वेव फ्रंट क्या चीज है। तो सब तो पहला वेव फ्रंट देखो की है। रे ऑप्टिक्स दे विच आपां पढ़िया रेज दे रिगार्डिंग, एक रेज आ रही है सरफेस दे उपर स्ट्राइक कीती, वापस जा रही है, इंसीडेंट रिफ्लैक्शन एंगल सेम बनाउंदे होए, नॉर्मल ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਥਿੰਗਸ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਈਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ, ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਰੇਜ਼, ਇੱਕ ਰੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਥਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਵੇਵਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਧੁੱਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਵ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਰੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੀਨਸ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਰੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਈਗਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਆਪਟਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਆ ਮੀਡੀਅਮ which are vibrating in the same speed। ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਸ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਟੀ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਵ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ 에ਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ 3 × 10⁸। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਕਿੰਨੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਟੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ 3 × 10⁸ ਹਰ ਟੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਵ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ, ਆਹ ਸੋਰਸ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੌਣ ਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਲਬ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਲਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬਲਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਟ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰੇਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਟੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ 에ਅਰ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਟੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਹਰ ਟੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਜੋ ਵੇਵਲੈਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਰੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
ਹੁਣ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, तो उसको कहांगे सफेरिकल वेव फ्रंट। बनाया किसने पॉइंट सोर्स ने, बल्ब ने। सैकंड, अगर साडे कोल वो सोर्स जिहड़ा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइन है, मींस जैसे ट्यूब लाइट, तो वो वेव फ्रंट किदां दा बनाउंदा, ट्यूब लाइट आ है ट्यूब लाइट, ये सारे ही पासे नूं इधर रेस नूं बिखेरदा है, सारे पासे नूं इधर 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 दे इधर नूं नहीं, क्योंकि इत्थे उन्हां दे जॉइंट्स ने, इधर नूं नहीं, ऊपर नूं नीचे नूं नहीं, सारे पासे नूं इदां। तो टी सैकंड्स तो बाद इन्हें जो रे बनाई वो इत्थे पहुंची, इधर इत्थे पहुंची, इत्थे पहुंची, इत्थे मीडियम ते एयर है, स्पीड 3 × 8, टाइम मैं सेम रखिया, कित्थे पहुंचे, इत्थे पहुंच गए, इत्थे पहुंच गए, इत्थे पहुंच गए, इत्थे पहुंच गए, मैं शेप नूं मिलाया तो मैनूं किदां दा बन के आ गया सिलैंडरिकल वेव फ्रंट, डिपेंड कीती सोर्स की। थर्ड, सन तो रेज आ रही बहुत दूरों आ रही, 30 सैकंड्स तो बाद मैं चेक कर, जिवें धुप लगी सी है, 30 सैकंड्स तो बाद चेक करा कित्थे पहुंच गया, इत्थे पहुंच गया, तो मैं नजर कितना आएगा वेव फ्रंट, उत्थे सन तो आने वेव फ्रंट नजर आता है, एक लाइन एक प्रॉपर प्लेन प्लेन नजर आता अगे बढ़ता पाया, तो उसमें आप बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। सन तो रेज आ रही है, आ सारे 4 केस में आगे 4 रेस लेके चले हैं, तो आ की बन गया मेरे को एक प्लेन वेव फ्रंट, आ प्लेन अगे एक सामना पासा प्लेन नजर आता। सो समझ में आई गल बच्चों, वेव फ्रंट केस नूं बोलते हैं, वेव का फ्रंट वाला पासा किधर नूं जा रहा है, तो इत्थों एक ध्यान नाल चीज देखो कि जिस पासे नूं रेज जा रही ने उस तो ये वेव का एंगल कितना आ, वेव फ्रंट का एंगल कितना 90 डिग्री है। सो अगर आ वेव फ्रंट है पूरा, तो रेज जिहड़ियां इधर नूं जा रही ने, ते उस इस वाले पासे दी जो रे इधर नूं जा रही है कि उसने इस वेव फ्रंट दे नाल एंगल कितना बनाया होया बच्चों 90 डिग्री, आ दोवां दे विचकार 90 डिग्री। ख्याल रखना, रेस मेक्स 90 डिग्री एंगल विद वेव फ्रंट। क्लियर? सो वेव फ्रंट थानू क्लियर हो गया होना चंगी तरह। नैक्सट बच्चों साडे कोल की है हाइगन्स प्रिंसिपल, जो अपना मेन टॉपिक है वो आप पढ़ांगे। हुण हाइगन्स प्रिंसिपल की कहंदा है, बड़े ध्यान दे नाल सोचना, एक एक चीज बच्चों इहदे विच जो लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो तुसी अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट जो भी चीज मैंशन की है उस चीज को खत्म नहीं होने देना, चीज़ें क्लियर हो गई। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, हर एक गिवन वेव फ्रंट के ऊपर, जिसमें मैं प्राइमरी वेव फ्रंट बोलांगा, एक्ट एज आ फ्रैश सोर्स, जो कि एक तरह का फ्रैश सोर्स बन के नजर आएगा सैकेंडरी वेवलेट्स के वास्ते। पहले इन्हें बना दी ये चीज है कि है, फिर तुहानू चंगी तरह क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें आप डिस्क्राइब करनी है। मान लो मेरे को की है, मैं थोड़े सामने की डिस्क्राइब की थी, अब बनेगा कि मान लो मैं इसमें मान लवा कि ये मेन सोर्स है मेरे को, इन्हों मैं कह लिया प्राइमरी वेव फ्रंट। इसने अगे एक वेव फ्रंट जिवें वो धुप वाला केस अगे बढ़ता जा रहा है, इसने अगली नूं बढ़ाता, उसने फिर अगली नूं बढ़ाता, उसने फिर अगली नूं बढ़ाता, उसने फिर अगली नूं बढ़ाता। सो जो चीज अगली नूं बना रहा है उसको आप बोलांगे प्राइमरी वेव फ्रंट, जो अगे बन रही है उसको बोलांगे सैकेंडरी वेव फ्रंट। बाद की होएगा, ये सैकेंडरी वेव फ्रंट बाद एक्ट करूगा एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, ते अगला वेव फ्रंट बनाएगा जिसको आप बोलांगे सैकेंडरी वेव फ्रंट। फिर वो सैकेंडरी वेव फ्रंट एक्ट करूगा एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, अगे एक होर बनाएगा जिसको आप बोलांगे सैकेंडरी वेव फ्रंट। गल समझ में आ रही है? हुण बनता किदां है देखो, इस प्राइमरी वेव फ्रंट को भी किसी सोर्स ने बनाया होगा, जो कि अगे मान लो मैं इसको किन्ने बनाया, सन ने बनाया। सो ये प्लेन वेव फ्रंट अगर एक प्लेन नजर आ रहा है मेरे को नजर भी जाता है, जहां मान लो एक तरह की लाइन बनती बने अगे जा रही है। एक केस है डिस्क्राइब किया, एक एग्जाम्पल है कि एक पूरा पूरा ये वेव फ्रंट है। ओके, सो जे मैं इन्हों कहना कि प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसने सैकेंडरी बनाता, इस सैकेंडरी ने अगे प्राइमरी फिर बनाया, तो मैं इन्हों एक्ट करावा एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, ताकि पिछली केस में भी समझा सका और अगले भी समझा सका। इस दे ऊपर जिन्ने भी, जे मान लो आ एक प्राइमरी वेव फ्रंट है ये वाला, इस दे ऊपर जिन्ने भी पॉइंट ने 1 2 3 4, 30 सेकंड्स तो बाद ये ऊपर जिन्ने भी पॉइंट ने, मान लो ऊपर इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जिन्ने भी पॉइंट ने, ए है, बी है, सी है या डी है, ये सारे की कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। 2 3 4 5
6 7 ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਬਣਾਤੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਤਾ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। सेम आगे के सारे बनाओगे, सी भी बनाएगा, डी भी बनाएगा। तो होएगा कि जे मैं इसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहा कि एट ए टाइम मेरे को मान लो एक प्राइमरी वेव फ्रंट है मेरे को जिसने अगे सेकेंडरी बनाना था कितना बनता है एवरी पॉइंट हर एक पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट ए बी सी डी ऑन द गिवन वेव फ्रंट जेड़ा वेव फ्रंट की मैं हुण गल कर रहा उन्होंने मैं मान लिया प्राइमरी वेव फ्रंट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਸ਼ ਸੋਰਸ, ਨਵੇਂ ਸੋਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੈਸ਼ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ A B C D ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, which travel in all the direction ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ 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 ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ with the velocity of light in the medium। velocity of light ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 에ਅਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 10 to power 8 ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਜੂ, ਗਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ 에ਅਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ, this 3 10 to power 8 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। क्लियर, ये डिस्टर्बेंस बन गया, क्लियर हो गया। वेवलेट्स की ने क्लियर हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट की क्लियर हो गया। आगे ये कह रहा a surface touching these wavelets, एक सरफेस जेड़ा कि इन्हां wavelets ਨੂੰ टच करदा होया मैं बनावा tangentially in the forward direction, अगली डायरेक्शन, क्योंकि wavelets इधर ਨੂੰ मूव कर वेव है इस पासे ਨੂੰ मूव करती पई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले पासे ਨੂੰ बनावा। ओके, in the forward direction at any instant, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मींस t सेकंड्स टाइम तो बाद, जो मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका। द न्यू वेव फ्रंट उस वेले जो नवा वेव फ्रंट बनेगा एट दैट इंस्टेंट, उस वेले एक नवा वेव फ्रंट साडे को नजर आएगा, गिव्स दूंगा सानू एक नवा वेव फ्रंट जिसमें बोलांगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको मैं की बोल दांगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। चीज क्लियर हुई कि इदा नहीं कहना कि जो सोर्स है वही अगे अगे बना रहा वेव फ्रंट। हाँ वही बना रहा क्योंकि उसे ने एक एनर्जी ट्रांसमिट की इन द फॉर्म ऑफ वेव जी अगे जा रही है, ठीक है। बट हर एक सैकेंडरी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਅਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਲੈਟਸ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ। ओके, क्लियर होगी बात बच्चों। सो ये सी साडे कोल हाइगन्स प्रिंसिपल, दोनों पॉइंट्स बहुत ध्यान नाल समझ ले। की चीज देखिए आप, स्पीड लाइट दी जिहड़ी है वो हर एक मीडियम दे विच अलग अलग है। एयर दे विच ग्रेटर है, वाटर दे विच थोड़ी घट जानी है, गिलास दे विच थोड़ी होर घट जानी है। क्लियर। सैकेंड थिंग, टाइम मैं सेम लेके चल रहा वा, खुद लेके चल रहा, खुद टाइम मान रहा वा। So therefore distances भी travel होंगे किस दे accordingly, speed into time दे। So distances water दे विच घट होंगे, ग्लास दे विच होर घट होगा, एयर दे विच सब तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, टाइम तो सेम ले रहे हैं। ये चीज आप मैथड के ऊपर ध्यान देना। अगे आप पढ़ांगे रिफ्लैक्शन ते फिर पढ़ांगे रिफ्रैक्शन। जल्दी ना मारो स्क्रीनशॉट इसका ताकि वो चीज आप चंगी तरह पढ़ सकिए। तो नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है अपने को रिफ्लैक्शन ऑन वेव थ्योरी बेसिस। वेव थ्योरी बेसिस के ऊपर की होगा, रिफ्लैक्शन इधर है, इस पासे रिफ्रैक्शन भी आप पढ़ांगे बाद च। बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ A, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆ ਬਣਾਇਆ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ R, एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है दोवां दा, तो एक रे आ केस ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ओके, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ B ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ एंगल ऑफ इंसीडेंस A ਬਣ ਜਾਂਦਾ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A ਬਣ ਜਾਂਦਾ। C ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ एंगल ऑफ इंसीडेंस ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ
ਇਹ I ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ R। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ इंसीडेंट रे जिन्ने एंगल के नाल इंसीडेंट करती पई है उसका 90 डिग्री बनाया ये तो साडे कोल वेव फ्रंट आ गया ए वाला ए बी ते सी। ये तीन पॉइंट्स ले ले मैं वेव फ्रंट के ऊपर ए बी ते सी। इस ए बी सी वेव फ्रंट के जिहड़े पॉइंट्स ने अब ये की करनगे डिस्टर्बेंसिस क्रिएट करनगे। जां जेकर मैं टी टाइम की गल करा हाइगन्स प्रिंसिपल नूं ध्यान च रखना टाइम अगर मैं लेके चलना टी सैकेंड्स ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 에ਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। वेव फ्रंट ਇੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ तो मीडियम सेम रह रहा कौन सा एयर या वैक्यूम। स्पीड होगी 3 × 10⁻⁸। इक्वल डिस्टेंसेस कवर होंगे क्यों क्योंकि डिस्टेंस की है स्पीड इनटू टाइम। ये भी सेम है दो मास टाइम भी सेम होएगा तो डिस्टेंसेस की ट्रैवल होएगा सेम। इसे चीज के अकॉर्डिंगली आप इनू फॉलो करना होएगा कि जिन्हें एंगल ऑफ इंसीडेंस दे नाल आई क्लिक किया आ उन्ना ही इंसीडेंस एंगल दे नाल वेव फ्रंट आके भी इत्थे स्ट्राइक करेगा। क्लियर जिन्ना एंगल्स जिन्नी वैल्यू बेटा साडे कोल आहा आ बची मगर उन्नी ही वैल्यू कौन सी ए वाली है वैल्यू आ दोवां दे विचकार। सो जिन्ने एंगल दे नाल आई आ रहा इंसीडेंस एंगल दे नाल एक रे इंसीडेंट करती पई है उन्ने एंगल दे नाल वेव फ्रंट जेड़ा वो भी इंसीडेंट करता पिया। ये भी एंगल आई ही है। सो वेव फ्रंट का एंगल ए आई है। क्यों ये आई हो गया क्योंकि इस वेव फ्रंट का पहला पॉइंट इंसीडेंट कर चुका इत्थे केड़ा ए। जो इंसीडेंट कर गया तो मतलब वेव फ्रंट आगे इंसीडेंट कर गया तो वो एंगल कितना हो गया आई। कितना सी जिन्ना एक रे का एंगल आई है उन्ना ही एंगल आई है। अब ये एंगल साडे कोल वेव फ्रंट का आ गया आई। अब की होएगा ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੀਨਸ ਆਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੀਨਸ ਆਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ T। सी पॉइंट की करेगा इत्थों पहुंचेगा T सेकंड्स दे विच इत्थों तक। समझ में आई गल तो जोड़ांगे तो की बनेगा ए वाला पॉइंट पहुंच गया जी इत्थे ए वाला पॉइंट पहुंच गया इत्थों इत्थे ए वाला पॉइंट पहुंच गया इत्थे। तो वेव फ्रंट केड़ा आ गया ए पॉइंट तीनों पॉइंट्स को मिला दो तो वेव फ्रंट बन गया। ओके क्योंकि लोकेशन आप चेक करनी है मीडियम वाइब्रेट कर रहा है हाइगन्स का पहला प्रिंसिपल इन ऑल डायरेक्शंस। ओके सारे पासे जा रहा फिर मैं अगर प्राइमरी वेव फ्रंट तो सेकेंडरी लेके चलना अगे वाला वेव फ्रंट लेके चलना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन लेके चलना पड़ेगा ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर तो रेस इधर जा रही है अगे फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर वेव फ्रंट में कोई बढ़ जाएगा आफ्टर 30 सेकंड्स तो बाद। अब हुण देखो तुसीं बनाउणा किदां इत्थे जाके स्ट्राइक कर गया तां तुसीं इत्थों कंपास लैनी है। कंपास लैके कोई अपने कोल कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना जिन्ना मर्जी 13 14 15 16 ओदी एक लगा लेनी आर्क लगाती आर्क आर्क हो गई। सेकंड चीज इस पॉइंट तो जिथे रेस जा रही है जिन्नी जाके मिलती है इतने जाके मिली है तो आ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा कितना जिन्ना डिस्टेंस ए आया आ डिस्टेंस जिन्ना आया होएगा उन्ने ही डिस्टेंस की आर्क इत्थों लैके तुसीं गा मारनी है। गल समझ में आ गई। पहला मैं बोल दिता बच्चों कि आ डिस्टेंस की तुसीं आर्क इत्थों अपने आप मार करनी किन्ने दी मार करोगे क्योंकि आ रेस में जाके इंस्टेंट करवाओगे ना इत्थे जिन्ना डिस्टेंस ये आया उन्ने दी आर्क इत्थे रख के इत्थे मारो तुसीं मार्क मार दी आर्क कर दी मार्क करता एक पॉइंट आ जाएगा साडे कोल पॉइंट दी एक सिंपल एक आर्क बनेगी आर्क बन गई। अब की करोगे जिन्ने एंगल दे नाल तुसीं इस नूं इत्थे इंसीडेंट कराया उन्ने एंगल रिफ्लैक्शन बनाउंदा होया इस नूं वापस भेजोगे तो जिथे जाके कट करके आर्क नूं उस पॉइंट नूं उत्थे पॉइंट साडे किहड़ा आ जाएगा ए डैश। इहदे नाल की होया एक तां आ डिस्टेंस और आ डिस्टेंस की हो गया सेम। सेकंड इंसीडेंट और रिफ्लैक्शन भी फॉलो होगी रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंगली बट आप किनू करते पे वेव ऑप्टिक्स। तो हुण करना आप कि होएगा की है सब तो पहले नंबर पे देखना चीज समझ लग गई बेटा 30 सेकंड्स तो बाद ए पॉइंट पहुंचा इत्थे 30 सेकंड्स तो बाद ए वाला पॉइंट एट दैट टाइम वेव फ्रंट क्योंकि इत्थों मैं टाइम शुरू करता सी उस वेले बी इत्थे सीगा 30 सेकंड्स तो बाद इत्थों तो इत्थे पहुंचा आफ्टर 30 सेकंड्स तो बाद इत्थे पहुंचा तो होया की है ए पॉइंट इत्थे गया 30 सेकंड्स तो बाद ए पॉइंट इत्थे पहुंच गया तो ए वाला पॉइंट इत्थों तक पहुंचा तो जो इतने पहुंचा सी उस टाइम के ऊपर वेव फ्रंट इतने बनना शुरू हो जाना है तो ए वाला आर की बनेगा कि ये आई और आर दोनों सेम बन रहे हैं वही चीज चेक करनी है आप जे ए आई और आर सेम बनते पे है
ਤੇ ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਵੇਵ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਇਹਦਾ ਆਈ ਆ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਰ ਏ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਈ ਔਰ ਆਰ ਸੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ। ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਈ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਈ ਮੀਨਸ ਆ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਸੀ ਡੈਸ਼, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਸੀ ਡੈਸ਼। 90 ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਡੈਸ਼ ਅਪਨ ਏ ਸੀ ਡੈਸ਼। ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਆਈ ਅਪਨ ਸਾਈਨ ਆਫ r equals to c dash upon ac dash divided by ਕੀ ਆਊਗਾ, a dash ਤੇ ਥੱਲੇ ac dash, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ac dash ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ a dash। ਕਲੀਅਰ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, c dash upon a dash। c dash ਕੀ ਹੈ, c dash ਆਹ a dash ਆਹ डिस्टेंस की आ गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड सेम सी, टाइम आप सेम लेके चले ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਸੀਗਾ ਉਨੀ ਮੈਂ ਆਰਕ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਆਰਕ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, साइन ऑफ ये सब चीजें कितने बराबर आ गई, 1 दे। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू 1, साइन ऑफ आई इक्वल्स टू साइन ऑफ आर। साइन साइन कट हो गई, जहां एंगल दोनों बहुत छोटे छोटे सी, साइन आई इक्वल्स टू की हो गया आर। सो एंगल दोनों की हो गई सेम, क्योंकि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर दे विच ने, तो फिर छोटे छोटे एंगल ने साइन साइन आप कट सकते हैं, तो आई और आर दोनों की बन गए सेम। आई और आर सेम होने क्योंकि छोटा पर्चा लेके चल रहे हैं, फिर मिरर का कितना दे नाल, सो ये दोनों एंगल सेम हो गए। सो ये क्लियर हो गई एक चीज, वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन दे बेस ते क्लियर। और आर हमेशा नॉर्मल लेके चलते पे सी, नॉर्मल साडे कोल किदां आ रहा सी, आ नॉर्मल रखे हुए ने हर जगह के ऊपर, नॉर्मल केस में लेके चले, आई और आर फॉलो करते चले, आज सेकंड लॉ भी प्रूफ हो रहा है। सो रिफ्लेक्शन जी है इस अकॉर्डिंगली इसे फॉर्मूले ध्यान रखते हुए फॉर्मूले आप रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। नैक्सट आ रहा है साडे कोल रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन की होएगा, रेज आ रही सी, वेव फ्रंट आया, इत्थे जाके ए पॉइंट स्ट्राइक कर चुका। अभी ये की है, आ केड़ा सी साडे कोल पहला μ1, ये आ गया μ2, ये μ1 मान लो, एयर है μ2 मान लो वाटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होएगा μ2 अपॉन μ1 किदा वाटर का रिस्पेक्ट टू एयर। अब की होएगा, ये रेज आ रही है, ये वेव फ्रंट इत्थे आके स्ट्राइक कर चुका। अब वेव फ्रंट स्ट्राइक कर गया, अब की होएगा, मैं टाइम नोट करना शुरू कर दूंगा। टाइम फिर कितना, 30 सेकंड्स, बट इत्थे एयर है इत्थे वाटर है, की होएगा, स्पीड घट जाएगी क्योंकि वाटर के स्पीड की होती घट। इत्थों गया 30 सेकंड्स तो बाद ये पॉइंट पहुंचा सिर्फ इत्थे, ओके, ये 30 सेकंड्स तो बाद ये पॉइंट सिर्फ इत्थों तक ही पहुंच सकेगा। एट दैट टाइम ए वाला पॉइंट इत्थे पहुंचा, उस तो बाद इत्थे पहुंचा, ओके। एट दैट टाइम इत्थों लैके ये पॉइंट इत्थों तक ही पहुंच सकेगा 30 सेकंड दे विच। तां की होएगा कि आ डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल होया, क्यों, स्पीड ज्यादा है। आ डिस्टेंस भी ट्रैवल होया बट इस तो घट, क्योंकि इत्थे स्पीड एयर दे नाल चलिया, इत्थे स्पीड वाटर दे नाल चलिया। इत्थे डिस्टेंस सब तो घट ट्रैवल होया क्योंकि इत्थे स्पीड भी की सी घट सी वाटर करके। तो की होया, मेरे को वेव फ्रंट आ बन के नजर आ गया। तो इसका मतलब वाटर दे विच की हो रहा है, रिफ्रैक्शन करके की बन गया, ये वेव फ्रंट थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है सानू, ओके। रियल एपरेंट डेप्थ के अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज हो रही ने, तो आ की हो रहा है, रिफ्रैक्शन हुई है, वैल्यूज का थोड़ा वैल्यू चेंज आ रही है, तो आ जिहड़ा अपने कोल वेव फ्रंट से थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है इत्थे। अब की होएगा, आ इंसीडेंट हो गया इत्थे, हुण जदों ये वापस वैल्यूज इत्थे पहुंचिया ते आ की बन गया, एंगल ऑफ आर, रिफ्रैक्शन आ गया साडे कोल, आ रिफ्रैक्शन एंगल आ गया, क्योंकि इत्थों बाद विच वो बनना शुरू होया वेव फ्रंट। आ पॉइंट एट दैट टाइम ये आया, तो वेव फ्रंट जो पहली बार बनया, ये बनया वेव फ्रंट उस वेले पहली बार, तो एंगल अपने को आर नजर आ गया। क्लियर। अब होएगा कि इसमें भी कितना करना, आप सेम उसी तरीके से फॉलो करो, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। आर इत्थे केड़ा रिफ्रैक्शन है, मैं डायरेक्टली ए स्टेप तो स्टार्ट करांगा बेटा, 1 डिवाइड बाय 2। साइन ऑफ आई की है साडे कोल, साइन ऑफ आई कितना सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
एंगल 90 ए रहा, इतने एंगल 90 ए रहा, की होएगा आई की आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की है सी सी डैश अपॉन ए सी डैश, थले डिवाइड किया साइन ऑफ आर की है परपेंडिकुलर कितने आ गया आ बेस है परपेंडिकुलर ये अपॉन आह, तो की आएगा वो ए डैश अपॉन ए सी डैश हाइपोटेन्यूज ए, ये तो फिर आपस कट हो गए तो की रह गया सी सी डैश अपॉन ए डैश। अब की होएगा सी सी डैश ये की होएगा डिस्टेंस है, तो की होएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है इथे दी स्पीड मान लो स्पीड ऑफ लाइट c1, इथे दी स्पीड इन वाटर c2, तो की आएगा c1 इंटू टाइम t, डिस्टेंस की आएगा स्पीड इंटू टाइम, नीचे की आएगा ए डैश वो की होगा c2 इंटू टी। क्लियर, टाइम दोवां सेम सी तो कट हो गया, तो साडे कोल की आ गया जी इथे साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो गया। एक किया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये किस दे बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे, होगी गल, चीज हो गया सेम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दा आ की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नु फॉलो हो रहा है इथे, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, सो आ चीज भी किस दे बराबर होगी इसे चीज दे बराबर होगी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो स्नेल्स लॉ है, तो स्नेल्स लॉ आ गया, मतलब रिफ्रैक्शन डन, रिफ्रैक्शन फॉलो हो गई। तो बच्चों कुछ लगे ऐसा कि कोई नवी चीज आई होगी, एक चीज आप स्टार्ट कर देवे, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आप पहुंच के बस किस चीज नु फॉलो करने चलना अपने आप ऑटोमेटिकली, टाइम सेम चलना पे स्पीड च फर्क आएगा, डिस्टेंसेस उसी के अकॉर्डिंगली बनोगे, वेव फ्रंट सामने नजर आएगा, चीजा फॉलो होती जान किया। अब की करना प्रिज्म ਲੈਂਸ ਤੇ ਮਿਰਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ। एक पॉइंट सोर्स है जो कि फ्रीक्वेंसी लेके निकलता, फ्रीक्वेंसी च फर्क नहीं पैंदा जो रेस कित्थों मूव करदियां ने, चाहे एयर च मूव करन चाहे किसी डेंसर मीडियम दे विच मूव कर, फ्रीक्वेंसी च फर्क नहीं पेगा। टाइम भी की रहता हमेशा सेम, टाइम च फर्क नहीं पैंदा, सो फ्रीक्वेंसी च भी फर्क नहीं पैंदा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी च फर्क नहीं आएगा। फर्क काहदे विच आउंदा, जदों स्पीड एयर दे विच होएगी एट दैट टाइम की होएगा स्पीड ज्यादा, तो वेवलेंथ जिहड़ी होएगी वो साडे कोई ना कोई बन के आई होएगी, नजर आई किदां सानू की पता है, आप पढ़ चुके हैं ना बेटा इन चीज नु कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आपस में इनवर्सली ने, बट इन्हां दोवां दे इनवर्सली दे नाल इत्थे जिहड़ी कांस्टेंट लगेगी वो किहड़ी लगेगी, स्पीड ऑफ लाइट, आ फ्रीक्वेंसी है आ स्पीड ऑफ लाइट है, ते आ की साडे कोल सी वेवलेंथ और सब चीज़ चंगी तरह समझ चुके चौथी यूनिट दे विच। वेवलेंथ की हुंदी है, वेवलेंथ साडे कोल आ सी बेटा, आ वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी की है कि एक सैकंड दे विच कितनी बार सिग्नल चेंज होया, फ्रीक्वेंसी सेम रहिंदी है, टाइम सेम रहिंदा है, आ चीज फर्क पैंदा है। अब जदों डेंसर मीडियम दे विच जाएगा तो की होएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, स्पीड घट जानी है, तो की होएगा फ्रीक्वेंसी सेम रखनी स्पीड घट जाएगी, मींस अगर ये डिस्टेंस जल्दी ट्रैवल नहीं होएगा, तो एट दैट टाइम की होएगा, फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 20 है एक सैकंड दे विच, एक सेकंड के 20 होएगा, पहला ज्यादा 20 ज्यादा हो रहा सी, दूर जा रहा सी, अब वेवलेंथ फर्क आ जाना तो इकट्ठे हो जाने देना, एक सेकंड में 20 आ गया, 20 फिर पूरे करने हैं, टाइम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम रही होंगी, फ्रीक्वेंसी किस दी होंगी है, पॉइंट जो सोर्स बना के भेजता पाया, फ्रीक्वेंसी सेम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी सेम किदां आवेगी, वेवलेंथ जिहड़ी है वो घट जाएगी। अब की सी पहला सी जो मान लो एयर वाला केस सीगा, तो दूर दूर ऐ लगा सिग्नल, एक सेकंड के कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी सिग्नल चेंज हो एक सेकंड के 1 2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई जी 2 आ गई, 2 फ्रीक्वेंसी आ गई 2 बार,
ये मान लो अगर एयर की एग्जांपल है, अगर वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ओके फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट की होएगा स्पीड घट जानी है। तो स्पीड घटे किदा शो होएगी, क्योंकि सानू इथों की पता है आ स्पीड घट जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, देयरफॉर आ चीज घट जाती है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ घटे किदा, फिर अगे आ 2 आ रहा सी 2 ही रहेगा, बट की होएगा इदा 1 2। अब की 2 बार सिग्नल चेंज हो गया, 1 2, हाँ जी 2 बार सिग्नल चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी इत्थे भी 2 ही है, टाइम इत्थे भी टी ही है, बट जिहड़ी वेवलेंथ है ओदी वैल्यू घट गई। अब वेवलेंथ मतलब की सी आ चीज, अब पहला इन्नी सी हुण कितनी है, इन्नी है, वेवलेंथ घट गई। तो आ चीज नूं ध्यान विच रखना तुसीं। इत्थे फार्मूला साडे कोल आ सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम जा घट जानी है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो देयरफॉर वेवलेंथ घटती है, अगर स्पीड घटती है देयरफॉर वेवलेंथ घटती है, ना कि फ्रीक्वेंसी। ध्यान विच रखनी चाहिए। सो नेक्स्ट मारो स्क्रीनशॉट जल्दी ना इसका बेटा। अगे बेटा लास्ट टॉपिक है साडा इस अज दे इस लेक्चर का, वो है कि अगर ये जो वेव फ्रंट है वो प्रिज्म दे विचों दी पास करवाइए या स्फेरिकल मिरर या लेंस दे विचों पास करवाइए तो की होगा। सब तो पहले सब तो प्रिज्म है, तो प्रिज्म वाले केस की होएगा, अगर ये वेव रेज आ रही है साडे कोल सारियां, एक वेव फ्रंट लगे आ रही है, ये वेव फ्रंट आया, अब ये वेव फ्रंट की करेगा, इत्थे वेव फ्रंट आके इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर गया, इत्थे स्ट्राइक कर गया, तो ये केड़ा आ गया साडे कोल एंगल ऑफ इंसीडेंस, इत्थे आ गया एंगल ऑफ इंसीडेंस। तो स्ट्राइक कर गया, मैं इत्थों डिस्टेंसेस मेजर करने शुरू करांगे। तो की कीता मैं स्टार्ट की कर रहा, मैं इत्थे स्ट्राइक कीता, तो मैं की कर रहा वा नाल ही उदों चेक कर दिता, की चेक किया बेटा कि टाइम कितना शुरू होगा, टाइम टी सैकंड्स तो बाद मैं की करांगा, टी सैकंड्स तो बाद की होएगा, ए पॉइंट जिहड़ा आ इत्थे स्ट्राइक किया, उस तो बाद वो इत्थे पहुंच जाएगा। ਜਾਂ मैं इदा इसनूं समझा, ਜਾਂ मैं समझा कि जदों इस सरफेस इत्थे आके स्ट्राइक किया तो यह वेव फ्रंट इदा बनया, वेव फ्रंट कदों पूरा बाहर निकलता पाया, उन्ना वा टाइम मिला टी सैकंड्स। ओके, तो वेव फ्रंट इत्थे जदों स्ट्राइक किया नाल ही मैं टाइम शुरू कर दिता, तो ए वाला पॉइंट इन्ना डिस्टेंस, फिर इन्ना डिस्टेंस, इसने इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, क्योंकि डेंसर मीडियम घट सी, सो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड ऑफ लाइट एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उस तो बाद बी वाला उसने इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया जो कि ए दे नालों घट आ, क्यों, क्योंकि स्पीड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਘਟ ਹੈ मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ, तो देयरफॉर ਇਹਨੇ डिस्टेंस भी घट ट्रैवल किया। इसने उस तो घट ट्रैवल किया, इसने उस तो घट, इसने उस तो घट, इसने सब तो घट ट्रैवल किया, सिर्फ इन्ना डिस्टेंस, क्योंकि इन्हें सारा सारा मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ट्रैवल किया। सो वेव फ्रंट मेरे को सामने नजर आया कुछ ये बन के। ओके, जे कल रे की गल करिए, इदा जाके रे स्ट्राइक करती पई है, तो इदा वापस जा रही है, सारे रेस इदा जाके वापस कर रही है, तो वेव फ्रंट में कोई नजर आया। सो प्रिज्म ने वेव फ्रंट कितना बनाना साडे को समझ आ गया। सैकेंड है साडे कोल एक मिरर किदा दा बनाउंदा, स्फेरिकल मिरर। कौन सा है, कनकेव मिरर है। इत्थे है साडे कोल वेव फ्रंट, मैं टाइम शुरू किया वेव फ्रंट नूं। ओके, की कीता, ए वाला पार्टिकल इत्थे जाके स्ट्राइक करेगा तो किते इत्थे पहुंचेगा, बी वाला पार्टिकल इत्थे स्ट्राइक करेगा तो इत्थे पहुंचेगा वापस, सीधा नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा तो वापस, सी वाला इत्थों स्ट्राइक करेगा तो इत्थे जाएगा। तो सब तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किसने किया यार, ए ने ते सी ने। ओके, अगर इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर, इस तो इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर जाके ट्रैवल कर रहे, तो करवेचर इन्होंने सेम फेज का नजर आ रहा है, तो इत्थों जाके इत्थे पहुंचणगे और बी वाला इत्थों सिर्फ इत्थे पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि इसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, ए इत्थों लैके मुड़ के वापस, ए पहले इधर नूं गया फिर वापस आया, सो ये सारा सारा एयर सी, सो डिस्टेंसेस सारा इक्को जिहा ट्रैवल किया है, बट ए रिफ्लैक्शन तो बाद जा ट्रैवल होया, ए रिफ्लैक्शन तो पहले जा ट्रैवल होया, रे भी रिफ्लैक्शन तो बाद जा ट्रैवल होया। सो एट दिस टाइम ए डैश इक्वल्स टू बी डैश इक्वल्स टू सी डैश, सारा एयर केस है। हाँ, ए वाला पार्ट उन्ना ही पिछे सी ना बेटा इत्थों, क्योंकि अदरवाइज की होना सी, अगर मैं इसनूं सीधा मिलावा तां कुछ आ बनदा, ए इत्थों लैके वापस इत्थों तक आया, सो बी ए भी इत्थों लैके इत्थों वापस गया, बी इन्ना पार्ट ते गया जिन्ना पार्ट ए जा रहा, इस तो अगे भी गया फिर वापस भी आया, सो इत्थे तां करके लैग रह गया पिछे। ओके, तां करके पिछे रह गया थोड़ा, तां ये करवेचर कुछ इदां दी बनी। ओके, सो स्फेरिकल मिरर किदां बनाउंदा भी सानूं समझ आ गया, लेंस किदां बनाउंदा, इत्थों मैं शुरू किया, टी टाइम शुरू कर दिता, जो बाहर निकल गया समझ आ रही है, डिस्टेंस ट्रैवल इन्ना,
डिस्टेंस ट्रैवल इना, क्योंकि इन्हें अब कन्वर्जिंग है, थोड़ा अंदर मोड़ना, साइड्स ने अंदर मोड़ता तो इतने पहुंचे पॉइंट। बी जड़ा है वो इथों निकलदा सीधे बाहर निकलूगा, ज्यादा डेंसर चो निकल के गया, इस करके इत्थे पहुंच सका, स्पीड दी लाइट च फर्क पैना है। ये बिल्कुल घट जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ग्लास के विचों दी, इसने ज्यादा ट्रैवल किया, इस करके पीछे रह गया। तो साडे कोल आ आएगा वेव फ्रंट, इस दे विच वेव फ्रंट आ सी, इस दे विच वेव फ्रंट ए सी। जो चीज़ें सानू समझ लग गया होनी बेटा वेव फ्रंट किस नूं बोलते हैं। अज आप हाइगन्स प्रिंसिपल करना सी बड़े चंगे तरीके दे नाल कीता, अच्छे तरीके नाल समझ किया। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दो टॉपिक बाकी है, वेव ऑप्टिक्स भी खत्म। अज लिए बस इन्हें खुश रहो, खुशहाल रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, लाइफ नूं की करना इंजॉय, और फार्मर्स नूं की करना सपोर्ट। घरे बैठे चाहे करो। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी का ध्यान रखो बच्चों।